English language. देखो, you have to see the types of question, the level of questions and options. The options are very close. You can easily answer the question. Many of the questions are based on specific details given in the passage. So if you see the question number two and one and two also, there is very you can say the level of the difficulty is very easy, है ना? क्योंकि everything depends on the option along with the questions. क्वेश्चन तो छोड़ो, ऑप्शन देख लो तुम, यू कैन इजीली बाइफरकेट ऑल दोस क्वेश्चन व्हिच आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग। ये बहुत आसान था। और क्वांट की बात, क्योंकि बच्चे इस बार क्वांट को लेकर बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर इस बार लेंथी हो सकता है, तो मोर एंड ओवर इजी था, आपको लगा बहुत बढ़िया। रेशियो से मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है पूछा गया है, परसेंटेज से आपका मतलब क्वांट आपका एक आसान सेक्शन रहा। बढ़िया। कितना आइटम लिए इसमें? चलिए बहुत बढ़िया, गुड। एंड लॉजिकल लीगल रीजनिंग कैसा थोड़ा टफ रहा? तब तुम किस बेस पे कह रहे हो? पैसेज थोड़ा टफ था या क्योंकि देखो पॉस्को एनसीआरबी रिपोर्ट पर ये पैसेज दिया गया है, ऑप्शन के बेस पे थोड़ा टफ था, लेकिन पैसेज को मतलब समझने वाला था, समझ सकते थे आप। बहुत बढ़िया। इसमें कितना आइटम रहा बेटे तुम्हारा? मतलब जो ओवरऑल पढ़ाया गया वो लगभग आया, रिटेल से कि जो बताया गया था इन द क्लासरूम ये तुम्हारा आया ओवरऑल, तो यही कहोगे ना? बहुत। खासकर इसका जब मैंने देखा कि क्वांट में अगर इतना ये तुम कॉन्फिडेंस हो, इसका मतलब तुम्हारा मेहनत रहा है। बहुत बढ़िया। Can you see from easy to moderate? Easy, definitely. Easy only. The only issue I personally faced was time, because obviously I'm not in practice of giving that paper, so I cannot manage my time. Other than that, it was pretty easy. How are the quant papers? Because many students hear about quant questions. Yeah, that was where I lagged the most. I wasted a lot of my time. I could not attempt all of it, but like seeing the questions, it was great. Because when I have seen the paper of English language and logical part, I got the question as well as the options. बच्चे क्या बोलते हैं options, they are unable to opt the right ones. तो इस बार तो बहुत आसान था। It was very successful. How are the legal? Legal was also pretty easy. Of course, you have to have some prerequisite concepts, but most of it you could get from the parallels. Current affairs, because I have got some of the questions from historical things. Like There was the civil disobedience one. more But in fact, that was like something very basic that we studied in 10th as well. So you study in 10th and you can easily answer all the questions. Considering that You should be optimistic. no, but I just gave it just because. But yeah, I am expecting maybe 100 or something minimum. Yeah, minimum. But उसके बाद तो फिर ज़्यादा have to carry it. How was the paper? As we see the easiest section was like why not English language? Sorry. And what about the current affairs section? करंट अफेयर्स सेक्शन में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है किसी करंट इश्यू से पूछे जाएंगे। क्या इसके बारे में मैंने कुछ बच्चों का पेपर देखा, it was also very easy, you can say. What about quant? Actually, in research, quant plays an important role. Personally, it was my intersection, so I wanted to do much. I think I How many questions did you take at? Only one. the one passage. How was the logical part? Logical was a bit tough. I felt like logical was the most toughest part. How many questions were there based on logical language plans? I think I did not. I was thinking because I would have 2 या 3 था। Logical section.
आपका जो फर्स्ट में होगा आपका क्या रहा आउट ऑफ 120 English 110, 190. लास्ट क्वेश्चन बताओ तो बात करते हैं अगर आपको था Yeah, I feel like it was क्या नाम है आपका? बेटा कभी कैसा हुआ पेपर आज? आपको क्या लग रहा है कि सबसे इजी सेक्शन कौन सा था पांचों में? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन थे जीके में से? कम करेंट जो विभाग का सबसे हाईएस्ट प्रीवियस टॉपिक से ग्रीक्स जीआई T20 ये सारे अपर के जितने भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं सारे तो ये पांच सेक्शन में से आप अगर नंबरिंग करेंगे कि ईजीएस के अगर जीके था तो उसके बाद जरा पांचों के बाद नंबरिंग ईजीएस को डिफिकल्ट सबसे पहले जीके उसके बाद लीगल उसके बाद इंग्लिश उसके बाद लॉजिक और एप्टीट्यूड वन फॉर सेक्शन आप हाँ क्या लगता है कि आप कितना जा सकते हैं? बताओ पेपर इजी था तो मुझे लगता है कि 90 के 90 जाने के आप ड्रॉप किए स्टूडेंट के क्लास 12 में मैं ड्रॉप किया अच्छा और आपका पूरा पेपर क्या 2 घंटे में सॉल्व हो गया था या पहले सॉल्व हो गया? नहीं पेपर मेरा लगभग 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले हो गया और आपको क्या लग रहा है कि किस कट ऑफ कहाँ तक जा सकते हैं? लास्ट ईयर 157 of गया था 107 प्लेस गया था इस बार क्या आफ्टर पेपर इसी का तो कहाँ तक जा सकते हैं? इस साल का तो मतलब लगता है 10 भी जा सकता है अच्छा ठीक है होता है बच्चों के लिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिजल्ट और देख रहे हैं क्वांट सेक्शन तो क्वांट का कैसा रहा तुम्हारा अपना टाइम आप पहुँचे क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ खासकर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो थोड़ा आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन और ऑप्शन डिसाइड करता है कि हमारा पेपर एक्चुअली कैसा है इस बार जो पेपर रहा तुम्हारा ओवरऑल अगर क्वेश्चन और ऑप्शन को देखो बहुत आसान था मतलब यू कैन इजिली गेट द राइट चॉइस हैविंग एलिमिनेटेड ऑल दोज ऑप्शन व्हिच आर आउट ऑफ कॉन्टेस्ट तो आप इसको कर सकते हो फिर आपका ये करंट अफेयर्स कैसा था जो करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ा कुछ टॉपिक्स जो प्रिपेयर कराया गया बाकी कुछ टॉपिक मुझे वो नहीं पता आपको नहीं पता ठीक ओवरऑल करंट अफेयर्स में मतलब ऑप्शन से आसानी से आप आंसर कर सकते हैं करंट से ज़्यादा सारा वो लंबी वगैरह का और ये अभी 33% रिजर्वेशन से इससे आया हुआ हिस्ट्री से है कुछ थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें भी पूछा गया जैसे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछा गया है तो मगर ओवरऑल अगर आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री का भी अगर आपने देख के गया होगा थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल था और पैसेज में आप इजीली आंसर कर सकते थे और जहाँ तक बात है इंग्लिश लैंग्वेज के हिंदी में भी जो एग्जाम दिया बच्चों ने उनका भी ये मानना है कि इंग्लिश आसान इसलिए था क्योंकि ऑप्शंस जो थे बहुत ही ईजी था मतलब आप एलिमिनेट कर सकते थे और सही ऑप्शन तक पहुँच सकते थे इनफैक्ट ये बहुत ही जरूरी होता है ओवरऑल इनका क्वांट भी अच्छा रहा और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ क्वांट के पेपर को तो आप सॉल्व कर सकते थे एक या दो पैसेज तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे इतना नहीं ओवरऑल आपका अच्छा ही रहा चलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट आप फिर आगे आपके साथ करें ठीक है बेटा क्या नाम है दोस्त आपका कैसा सबसे इजीएस्ट सेक्शन क्या था पांचों में से लीगल जीके अच्छा और सबसे डिफिकल्ट सेक्शन क्या है मैथ्स वाला था अच्छा आपको क्या लग रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है 102 आपको लग रहा है कि इसमें बैंगलोर बड़े आराम से मिले और आपको क्या लग रहा है कि भोपाल या जोधपुर तक भी लोएस्ट कट ऑफ क्या तक जा सकता है सर भोपाल जोधपुर के लिए 65 67 अच्छा और पूरा पेपर 2 घंटा लगा सॉल्व करते थे इससे पहले ही सॉल्व करते 5 मिनट पहले सॉल्व हो गया तो पहले सॉल्व करते आपका क्या लगता है आपको क्या स्कोर आएगा सर मेरा 78 डिग्री 78 ठीक है इजी पेपर था उस हिसाब से कट ऑफ की जाएगी तो मुझे लगता है मैं 78 डिग्री ठीक है बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड इवनिंग एवरीवन जैसा कि आप देख सकते हो हम वेंकटेश्वर कॉलेज के पीछे क्लैट का पेपर बोर्ड हो चुका हुआ है हमने काफी सारे बच्चों से बात की हुई है आनंद सर मेरे साथ हैं जिन्होंने कम से कम लगभग 8 से 10 बच्चों का इंटरव्यू किया हुआ है और ये आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कौन सा सेक्शन ईजी है कौन सा टफ है और कट ऑफ कितनी
की जा सकती है, इन सब के बारे में सिर्फ आनंद से के बच्चों से बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं और पता करते हैं इस बार का क्लैट का पेपर कैसा रहा। सर, थैंक यू सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने सेक्शन देखा क्लैट के, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या क्वांट हो एंड लीगल रीजनिंग हो, उसमें से सबसे जो इजी क्वेश्चन लगा मुझे बीइंग अ टीचर, और मुझे लग रहा है कि मेरा ये विश्वास है जिस तरह से मैंने पढ़ा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेवल ऑफ डिस्कशन मैंने कराया। सो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे आसान रहा है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को पैसेज को अगर आप छोड़ दीजिए तो जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस हैं बहुत आसान थे, मतलब आप यू कैन इजीली एलिमिनेट दोज ऑप्शन व्हिच आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सही ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कहें पैसेज में, अगर आप एक बार पैसेज आपने पढ़ लिया, यू आर नॉट सपोज टू गो बैक टू द पैसेज, आप एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। इनफैक्ट आप 2 से 2.5 मिनट में एक पूरे पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं और आप आंसर कर सकते हैं। एक बच्चों के मन में जो करंट अफेयर्स को लेकर सस्पेंस था कि किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, अब जो है सोशल इश्यूज पे ज्यादा हो सकता है या कंप्लीट करंट अफेयर्स पे रहेगा लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर का, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि इसमें जो है हिस्टोरिकल पैसेज जो भी है पूछे गए थे, खासकर सिविल डिसोबीडियंस को लेकर पूछा गया था। अगर बच्चे 9th 10th में भी इनफैक्ट अगर हिस्ट्री अच्छे से करे होंगे तो मेरे ख्याल से वो पैसेज को देखते ही आंसर कर दिए। तो करंट अफेयर्स भी जो है बहुत आसान था। और जो क्वांट का सेक्शन था इस बार मुझे लग रहा है सिंस 2020 अगर बात करें, ये सबसे इजीएस्ट पोर्शन रहा अभी तक का क्वांट में, अगर आप सिंस 2020 से अगर बात करें, क्योंकि बच्चे आराम से, मैंने बहुत बच्चों से बात किया, इनफैक्ट मेरे बच्चे जो मुझे कॉल कर रहे हैं वो भी मुझे बता रहे हैं कि 2 पैसेज जो है वो आराम से कर ले रहे हैं। तो 5 to 10 क्वेश्चन तो इजीली आंसर कर रहे हैं। और मैंने किसी बच्चों को नहीं देखा कि सर मैंने क्वांट छोड़ दिया या पूरा सेक्शन ही छोड़ दिया, जो अमूमन ऐसा हर साल में होता था। तो 7, 8, 6, 8 ऐसे करके बच्चे आंसर करते हैं। और लीगल रीजनिंग की अगर बात करें तो उसका भी जो ऑप्शन है सेम ऐसा ही ऑप्शन है जैसा कि अदर पार्ट्स में है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग में कहें या इंग्लिश लैंग्वेज। ओवरऑल अच्छा रहा मुझे लग रहा है इस बार, हालांकि कट ऑफ कहना मुश्किल है। वैसे अगर पेपर आसान होते हैं या आपको मालूम होना चाहिए कि कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई भी होगा। अब अगर पैसे आसान तो गलतियां जो है कि होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि आई कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 to 95 एक अच्छा स्कोर रहेगा मेरे ख्याल से एक अच्छे रिव्यूज के। सर, इजी टू डिफिकल्ट के स्केल पर आप कौन सा सेक्शन को बता सकते हैं? मुझे लग रहा है कि अगर इजी टू मॉडरेट की बात करें, क्योंकि मैं डिफिकल्ट इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखा जाए, फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, तो इसको आप इजी नहीं रखें। हाँ, लीगल रीजनिंग में मुझे लग रहा है कि कुछ मॉडरेट पैसेजेस थे जो जहाँ पर बच्चे हो सकता है कि ज्यादा टाइम दिए होंगे और उनसे क्वेश्चन नहीं बना, तो आप इसको ओवरऑल कह सकते हैं कि इजी जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सर, 1 लाइन आंसर चाहता हूँ, क्या कट ऑफ जा सकता है बैंगलोर के? आई थिंक 95 to 100 के बीच में रह सकता है, 95 to 100, क्योंकि मैंने कई और पेपर में देखा है कि अगर लेवल ऑफ पैसेज का अगर आसान है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी रहा या मॉडरेट तक रहा, तो इसमें बच्चे बहुत गलतियां भी करते हैं, जो मैनर मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि बच्चे अभी एग्जाम देके बाहर निकले हैं, जब वो घर जाएंगे उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा तो आई मेड दिस मिस्टेक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है 95 to 100 के बीच जो है मिल सकता है। मैं जानना चाहता हूँ, जिनको आपने फ्लैट दिया हुआ है, उनके बाद के ऑप्शंस क्या क्या है उनके पास, थोड़ा सा मुझे बता दें कि अब सिंस फ्लैट खत्म हो गया तो और कौन कौन से ऑप्शन उसको एक्सप्लोर करने चाहिए। विदाउट फेल अगर हम कहें इस बात को, तो मुझे लग रहा है कि CUET जो है एक बहुत ही बड़ा एग्जाम क्योंकि होने वाला है उन बच्चों के लिए, बाइक भी अगर उन्हें लग रहा है जो फ्रेशर्स इनफैक्ट कह सकते हैं, जो जिन्हें समझ में नहीं आया सिलेबस, पहली बार वो ट्रायल ग्रुप में क्लैट को देख रहे थे, उनके लिए CUET जो है पेपर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि हाँ, CUET ही जो है एक सबसे बड़ा बच्चे अच्छा कर सकते हैं, आप करते हैं। खासकर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे ट्रायल के लिए आए थे या नहीं समझ पाए पैटर्न को, पहली बार एग्जाम दे रहे थे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए थे, नहीं हो पाया, तो उनके लिए CUET बहुत बड़ा जो है एग्जाम है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस किया और ये एक ट्रायल बेस पर अंदाजा लगाया कि क्या सेक्शन जा सकता है, क्या टॉप कर सकता है। ओवरऑल ईडी एस्टिमेशन में कि पेपर जीता, और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अंत नहीं है, इसके बाद बहुत से और थैंक यू सो मच।